जयपुर ज्वेलरी शो का उद्घाटन GJEPC के चेयरमैन विपुल शाह ने किया। 901 स्टॉल के साथ में 26 दिसंबर तक चलेगा JECC में। सीतापुरा स्थित JECC में 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले जयपुर ज्वेलरी शो के 20 साल पूरे हुए। शो का उद्घाटन करने के लिए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विपुल शाह ने रिबन काट कर किया। इस बार शो में देशी विदेशी 901 स्टॉल लगाई गई। विपुल शाह ने कहा कि JJS की टीम शानदार काम कर रही है। जयपुर को विदेश में आज JJS की वजह से काफी नाम मिला है। JJS and the whole committee for putting this wonderful exhibition, and I believe it's one of the biggest ever show organized by JJS, where under one roof you will be able to see all different segments, color stones, semi-precious stones, and all other beautiful design crafted pieces, and happening in very much our own Jaipur. So congratulate to all the organizers and wishing them a lot of success, and wishing them all the good to the exhibitors and all the best for the show. Thank you. How you compare this show with IIJS Signature as well as IIJS Premium? Jaipur Jewelry Show is one of the best show. It is having its own unique features, and it is being the hard work which you can see put by all the promoters by themselves. So it's something very unique, very different as compared to IIJS. Yes, IIJS has been here for so many years. It's been organized by now. It's come to a level where it's being professionally handled, and we are just overlooking things, and we are just taking new suggestions coming from the exhibitors, and we are trying to incorporate whatever best we can. So yes, Jaipur is especially well known for its craftsmanship and studied and color stone, and very much having it over here in Jaipur is having its own importance. So that is a very good sign for us. A calendar for the shows. Lot of people are organizing the jewelry shows, and there are clashing of dates. How do you react on this? This is very important, as you are understanding that our country is also looking for needs of exports. So exports का बढ़ावा देने के लिए इस तरह के exhibitions होने ही चाहिए, जहाँ पे under one roof you get all the buyers, international buyers, all the exhibitors displaying their product, displaying what is India capable of, and this helps to promote the branding of India as well as branding of our unique features what we are having, of different designs which can be displayed to the world. सर, आपने अपने स्पीच में बोला था कि ब्रिटेन और यूके और यूरोप के साथ में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होना है, जिसके बाद में एक्सपोर्ट को बढ़ावा होगा। जो $46 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है, उस टारगेट पर अभी मतलब टोटल जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो नहीं पहुँच पाया है। तो ये जो नया एग्रीमेंट होगा उससे क्या असर होगा? टोटल हम लोग को कॉमर्स मिनिस्ट्री से $45.7 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट दिया गया है। अब तक तो जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र नवंबर तक तो हम लोग ग्रोथ के कंपेयर टू अदर एक्सपोर्ट आवर इंडस्ट्री हैज बीन डन मच बेटर। वी आर वेरी मच ऑन द टारगेट। हाँ, थोड़ी बहुत चैलेंजेस है जो यूक्रेन और रशिया को वॉर से लेके चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के वजह से अभी हाल में अगर सप्लाई का इशू, क्योंकि डायमंड पार्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर, मोर देन 55% कॉन्ट्रीब्यूशन डायमंड का सेगमेंट का आ रहा है 45-46 बिलियन में, और लैब ग्रोन का भी क्षेत्र बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम अपना यहाँ से कलर स्टोन और उनका भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ है। तो अभी इस सप्लाई का इशू जो हम लोग को रशिया को लेके डायमंड का जो पेमेंट करने का जो इशू आ रहा है वो गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। हम लोग गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप में है, और उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि वेरी सून दे विल बी कमिंग अप विद दिस वॉस्ट्रो अकाउंट where Indian banks will be having corresponding along with the Russian banks over there, and immediately this problem should be resolved. कौन पूछोगे? विमल जी पूछोगे? आप भी पूछोगे? सर 901 फिगर 901 तक पहुंच गया। ये 901 में मतलब इसके बाद में आगे की क्या प्लानिंग रहेगी, और इस शो को लेकर के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो, जहाँ तक 901 का सवाल है, हम अगर चाहते तो हम 1000 क्रॉस कर सकते थे इस साल, लेकिन हम ऑलरेडी 156 बूथ हमने ऐड करी है इस साल, और हम
स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि जो लोग भी यहाँ एग्जीबिटर्स हैं उनको प्रॉपर बिजनेस मिले। अगर एक साथ बढ़ा देंगे तो विजिटर अगर उसी रेशियो में नहीं आए तो उनको प्रॉपर व्यापार नहीं मिलेगा। इसलिए 901 तो इस बार है, 1001 अगली बार हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है बिजनेस का, इस बार जितनी हाइप क्रिएट हुई है जयपुर ज्वेलरी शो की, पहले आज तक ऐसा नहीं देखा गया। और काफ़ी कस्टमर तो 3 दिन पहले से जयपुर आए हुए हैं और वो जयपुर में जो एग्जीबिटर्स नहीं है उनके यहाँ भी जाके खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मैं मानता हूँ एक शुरुआत है और ये बहुत अच्छा शो जाने वाला है। सर JJS 20 के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? JJS 20 का माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 20 साल का जो सफ़र था, हमारे जो कन्वीनर थे रश्मिकांत जी, उनका ये सपना था कि जयपुर का ट्रेड और जयपुर का नाम आगे बढ़े। और ये 20 सालों में जो हमारी यात्रा रही है, 20 गुना जो हम बढ़े हैं, उसके मैं समझता हूँ वो एक सफलता जो हासिल हुई है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो परिपूर्ण हुआ है। और जयपुर का नाम जयपुर ज्वेलरी शो की वजह से आज देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि बाहर से भी लोग आए हैं इस बार, तो हर जगह ये हमारा नाम जयपुर ज्वेलरी शो का बाहर से आने वाला जयपुर ज्वेलरी शो का इस साल जो आप देख रहे हैं रंगरूप, इसमें पिंक क्लब मेन आया है, जहाँ B2B यानी सिर्फ व्यापारी ही खरीदारी कर सकते हैं, वही लोग वहाँ जा सकते हैं। ये एक नया एडिशन हुआ है, 901 बूथ हो गई है। ये एक बहुत बड़ा असर लाएगा कि 156 बूथ पे आपको नया माल और देखने को मिलेगा। और ये भी चांस है कि हमारी चूँकि 150 से अधिक वेटिंग लिस्ट है और 86% हमारे रिपीट एग्जीबिटर्स रहते हैं, तो अगले साल हम आसानी से 1000 से ऊपर का ये शो ऑर्गेनाइज करेंगे JJS, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। पर मैं समझता हूँ JJS का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसी भी ग्राहक को यहाँ आके सीधे माल खरीदने का है। जो इंटरनेशनल शोज या जो IIJS या बड़े शोज हैं उसमें आप माल ऑन द स्पॉट नहीं खरीद सकते, वो B2B शो हैं, व्यापारियों के लिए है। यहाँ ग्राहकों को भी फायदा होता है, ग्राहक भी ऑन द स्पॉट खरीदारी कर सकते हैं और 900 बूथ पे माल देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ JJS उस सेंस में बहुत यूनिक है कि हम जयपुर में इस ढंग से माल खरीद सकते हैं। पेपर पे बनाते हैं, हम ही डिज़ाइन पेपर पे बनाते हैं एंड देन हम ही डिज़ाइंस को कैट डिज़ाइनर को देते हैं इन्हें कैट पे डिज़ाइन करने के लिए। देन इसका आगे का प्रोसीजर पूरा फॉलो होता है, जैसे कि कास्टिंग, वैक्सिंग एक्सेट्रा। एंड ये जो सारी ज्वेलरी है इनके अंदर सीजेड स्टोन, दैट इज सेमी प्रेसिज स्टोन्स यूज हुए हैं। एंड इनकी प्योर सिल्वर ज्वेलरी है, दैट इज इसके अंदर कुछ ज्वेलरी के अंदर 24 कैरेट की प्लेटिंग हुई भी है एंड कुछ सबके अंदर 95 का हॉलमार्क लगा हुआ है। नहीं, यहाँ पे कुछ आपने, मैंने सुना है कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी इस्तेमाल किया। एंड यहाँ पे जो ज्वेलरीज है बाकी की, ये हमने कॉलेज में खुद ने बनाई है हाथों से, वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जूट हो गया, एक्सेट्रा। आपका नाम क्या? हमसे बनवाई जाती है टीचर्स से न मैन्युफैक्चरिंग, तो वुड से, प्लास्टिक से, जूट से भी बना सकते हैं और क्ले होता है, मोल्डेड होता है। दीज आर द प्रोडक्ट जिससे हम ज्वेलरीज मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने खुद के डिज़ाइन मैन्युफैक्चर तो जितने वेस्ट मटीरियल्स, जितने वेस्ट मटेरियल, हाँ मतलब लाइक अदर मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने मेटल से अदर होते हैं, जिनसे अपन बना सकते हैं। लाइक बॉटल्स होती है, अपन उनसे भी बना सकते हैं, और जूट होता है उनसे बना सकते हैं, फ्लावर होते हैं उनसे बना सकते हैं। आपका नाम बताओ। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। हमने ये सारी ज्वेलरी यहाँ से पहले कॉलेज से BSc करके, देन मास्टर्स का कंप्लीट करके खुद का बिजनेस चालू करके, टाइल्स की ज्वेलरी होती है, रिंग्स की हम ऑर्थोग्राफी पहले शीट पे बना के, देन उसको पूरा मैन्युफैक्चर को दे के हम पूरा उसका रिंग्स की डिज़ाइन और बनाते हैं। बैचलर्स और मास्टर्स हमने कॉलेज से करा है और पूरा फिर हम रिंग्स का कंप्लीट ऑर्थोग्राफी देते हैं एंड देन कोई इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर मिलती है। नाम बता। लक्षिता उचार।